آپ سب کو بہت بہت سلام. بچوں سے لے کے پھر ایک بار سب کو بہت بہت پیار. God bless you all. خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے. آج ہم خدا کے کلام کو جو سنتے ہیں پرستش میں، آج پاسٹر نے بڑی اچھی بات کی، ٹیم ورک. یہ نہیں کہ وقار مجھے لینے آتا میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. سب کو مقرر کیا گیا ہوا ہے جہاں جہاں بھی وہ ہیں اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے اور خدا کی خدمت کے لیے استعمال کریں. بڑی کوشش کی جاتی ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کے کو جلال دینے کے لیے دن ب دن بڑھ رہے ہیں. آمین. چرچ آف کرائسٹ. آئے نکالے میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں پہلا باب. آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے. کلیسیا. کلیسیا میں نہیں ہوں، کلیسیا آپ نہیں ہے، کلیسیا پاسٹر نہیں صاحب نہیں ہے، ہم سب ہر فرد کلیسیا ہے. یاد رکھیں آپ ہر شخص بیٹی ہے، بیٹا ہے، بزرگ ہے، آپ کیا ہے؟ کلیسیا ہے. جی. پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور بھائی سوتھینس کی طرف سے خدا کے اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں. ہمارے باپ خدا. پالوس کا پہلا نام کیا تھا؟ ساؤل. بھول گیا کیا نام تھا؟ کیا تھا ساؤل؟ کس قسم کا شخص تھا؟ کرنے والا، فسادی، جھگڑا، قاتل، پتہ نہیں اور کیا کیا اس میں عیب تھے. اور زیادہ سے زیادہ وہ مسیحیوں کو بہت ہی اذیت دیتا تھا. قتل کرائے اس نے، مارے، پکڑوائے، جیلوں میں ڈالے. آج کا یہاں لکھا ہوا کہ پڑھا آپ نے؟ پالوس کی طرف سے جو خدا کی پالوس جو ساؤل تھا، پالوس جو کیا ہے؟ خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے. خدا کی مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. خدا کہاں کہاں سے پکڑتا ہے. کبھی نہ اپنے آپ کو سوچے میں حقیر ہوں، مجھے پڑھنا نہیں ہوتا، مجھے لکھنا نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں آتا. خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. پالوس، جسے پالوس کہا گیا ہے اور رسول کہا گیا ہے، لکھا کہ خدا نے اسے بلایا. ہم بلائے گئے لوگوں میں شامل ہیں. You are also called. آپ بھی بلائے گئے ہیں. ایویں نہیں آ گئے دوسری سے. آپ کو کس نے بلایا؟ آپ اسلام. خدا آپ کو بلاتا ہے، خدا آپ کو کھڑا کرتا ہے، خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا اپنے آپ کو کہ میں ایسا آدمی مینو نے دعا بھی نہیں کرتے ہوں. خدا آپ کو استعمال کرے گا. ابھی آنے سے پہلے میرے گلے میں بہت تکلیف تھی، رستے میں بھی یہ کہہ رہا کہ بنے گا، باہر پڑے گا. بیٹی نے ہیلپ کی مجھے، میں نے کہا تھوڑا یاد رکھ دے دیں مجھے، بس میں یاد رکھ جانا. And I'm feeling much better now. دیسی علاج بھی کرنا چاہیے، کیپسول کھا کھا کے کیوں اپنے آپ کو. خدا نے کیسے آدمی کو چنا؟ جو کوکس لکھ رہا بائبل میں اس کا نام ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو ہر جگہ وہ جاتا ہے اور اسپیشلی اسے غیر قوموں کے لیے خدا نے چنا. خدا جانتا تھا یہ کیا کر سکتا ہے. خدا ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے. یہ پرستار ہے،
ये कलाम कर सकता है, ये मौजूदे कर सकता है, इसे खुदा ने गैर ज़बानों की नेमत बख्शी है, ये बीमारों के लिए दुआ कर सकता है। दिस इज अ टीम वर्क। हम बनाए गए हैं किस लिए? उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए। आप कौन से लोग हैं? आपके नाम उस किताब में लिखे जाएंगे जो किताब मुकद्दस होगी, पाक किताब है, हयात की किताब है, और उसमें पाक लोगों के नाम लिखे जाएंगे। प्लीज मेक योर माइंड वेरी क्लियर। खुदा पाक है, उसका कलाम पाक है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के और वही कलाम मुजस्सम हुआ और रूह कुद्दस की कुदरत से मुजस्सम हुआ था। इसलिए वो कहता है कि हम बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं। आप चर्च की खिदमत जहां भी हैं, आप अपनी ड्यूटीज छोड़ के आते हैं, खुदा ने बुलाया है आपको। खुदा इंतजाम करता है, आपको फ्राइडे ऑफ मिल जाता है। प्रेज द गॉड एंड थैंक गॉड। बहुत सारी तालियां। मैं अपने स्टाफ में, अपने जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं, रिक्वेस्ट है, मैडम है, बॉस है, सर पॉसिबल है, वी वांट टू गो फॉर वर्शिप। और खुदा बंदोबस्त करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो मांगो तो सही, छुट्टी मांगो मिल जाएगी। घबराना नहीं, खुदा हमारे साथ। God is with us। कहता किस लिए बुलाए गए हो? पाप किए गए हो और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, होने के लिए बुलाए गए हैं। To be clean, to be washed। खुदा उनकी लहू से धुल जाओ। उसने अपना 14 बेला बख्शा इसलिए कि हम पाप धुल जाए। कमजोरियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, लेकिन खुदा ने बुलाता है। बाइबल में जिक्र है, पैदाइश की किताब में खुदा ने कुछ लोगों को बुलाया। इब्राहिम को, इब्राहिम नहीं अब्राहम है, अब्राहम को बुलाया। कहां से बुलाया? कौन सा कबीला था जी? उसके बाप का नाम तारा था और वो बुत प्रस्त थे और बुत बनाता था। देखिए खुदा ने कहा से चला, बुतों की फैमिली से दरबारों में जाने वाले होंगे, आज भी हैं। वहां से खुदा ने उसे बुलाया। उसका नाम क्या था? अब्राहम। और लिखा है कि जब खुदा ने उसे बुलाया, खुदा उससे हम कलाम हुआ डायरेक्टली। खुदा ने देखा होगा ये शख्स मेरी आवाज को जरूर सुनेगा। ये शख्स अपने कबीले में से, अपने बुतप्रस्त कबीले में से अलग नजर आ रहा है। और उसे कहा गया कि क्या अपने नातेदारों को छोड़कर यहां से निकल जाओ। अपनी बीवी सारा को, अपने पति को, क्या नाम था? वो सोची बह गया, सोचता रहा कि मैं छड़ के जावा। इन्ना बड़ा कबीला, मौजा लगी आने थे, बट he left। तो चल पड़ा। आज ईमानदारों का बाप, कौम बनी इस्राएल का बाप, और लिखा हुआ है बाइबल में उसके नाम से दुआ दी जाती है। इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा। कितनी रीत खुदा चुनता है, वो आपको चुनना चाहता है। वो इस कलीसिया को एक जलाली कलीसिया देखना चाहता है। खादमों,
elders, the staff, and all of you. खुदावंद आपको बड़ी बरकत देना चाहता है। क्या हुआ? मूसा गया, and he listened to the word of God. खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को उसने सुना। हम कभी कभी नहीं सुनते। इतना सुनने थे तो खुदा आपसे भी आज हम कलाम होता है, लेकिन कई दफा हम अपनी मजबूरियों, अपनी सोचों, दुनियावी ख्वाहिशात और बहुत सी मुसीबतों के भूल जाते हैं। याकूब को खुदा ने बुलाया फदैश की किताब में इसका भी कहानी कर घर से भागा था ना, क्या किया था उसने? धोखा दिया अपने भाई। ये खुदा के निजाम है, ये ना कि खुदा ने तो कैसे करा। बहुत सारे कत्ल खुदा ने कराए हैं, आपको पता? तो फिर वो कहता है ना कर दो। सिचुएशन नाम में उनको समझने की कोशिश किया। और याकूब जब चला गया बाहर बेयाबान में था, रात में उसने ख्वाब क्या देखता है? आसमान से लेके जमीन तक सीढ़ी है और फरिश्ते आते जाते हैं, और सब ऊपर कौन बैठा हुआ है? खुदा बेयाबान जंगल में अकेला। जंगली जानवर उसे नुकसान दे सकता, सांप आ जाता, चोर आता, लेकिन खुदा ने उसे चुन लिया, उसे बुलाया हुआ था। वो इसलिए सफर पर था और खुदा उसके साथ था, उसकी हिफाजत का पानी कर रहा। प्रेज़ गॉड। आज याकूब से क्या हुआ? वो जी याकूब से इसराइल आज दुनिया की टॉप पर ऐसी कौम है, सल्तनत है, खुदा की कौम है, खुदा के चुने हुए लोग हैं, और खुदा ही के वो लोग हैं। खुदा अजीम खुदा है। वो जब नाज़िल होगा, उतरेगा, हर चीज भस्म हो जाएगी। क्या कहा था उसने शिगिर्दों को? याद है आपको? बहुत पुरानी बात है ना, 2000 साल पहले। यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें खुदा की तरफ बढ़ना है। हमें इसलिए बुलाया जाता है कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ शराकत करें, मुकद्दस हो, और उसके साथ उसके नाम को जलाल दें, और उसके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है। वी आर ब्लेस्ड पीपल। आज जिनके पास सोलिया में भी खुदा का घर है, आज जिनके पास खुदा का कलाम है, आज जिनके पास चर्च है। हमने शुरू में जो यहाँ मुसीबतें देखी हैं वो आपको नहीं पता, पास्टर शिजान है, सिस्टर डेली है, हमने देखी है मुसीबतें यहाँ पर। घरों में छुप कर इबादत करते थे, डर देगा, आवाज नहीं बात होनी चाहिए। सत्राहों में पहला खादम जिसने सत्राहों में आबाद शुरू की थी, लोग डरते थे, गम साहब भी कर लगी बनवाना नहीं था। दलेरी कर ईमान खुदा देता है, दलादली वहां खराब कर गया, ठीक हो गया। स्पिरिट ऑफ द गॉड इज मूविंग अराउंड। खुदा का रूह कलाम करता है, खुदा का अपने कानों को संभाल लेता है, उठा खड़ा करता है। खड़ा हो जाते ना, गला नहीं ठीक हो जाए, घबराना। अजीजों, अगर हम बुलाए हुए लोग हैं, ये उन्हें अब फिर हम वहां तक नहीं जा सकते। कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खुदा के उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं। साहब ने मैसेज दिया था फजल पर, सुना तो नहीं है। मैं क्या करता हूं, तुम फजल से, हम ब्लेस्ड हैं तो फजल के वसीला से, हम मसीही हैं तो फजल के वसीला से। अभी तो याद रखें,
इन 3 शख्सों का जिक्र किया है, इब्राहिम, याकूब और इनको खुदा ने बनाया। हम अपने खुदा के बारे में जानते हैं, मेरा खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। खुदा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा, ये सबसे बड़ा फजल है। फजल किया उसने, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये क्या है। आए पढ़े जरा जो 6 बाब 11 है, तो लिखा है बाज तुम में ऐसे थे इसलिए उसको आना पड़ा, और बाज तुम में ऐसे ही थे से सुने, मैंने नहीं बोला, मगर तुम और बाज तुम में ऐसे ही थे भी जी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। किसके वसीला से? यीशु मसीह के यीशु मसीह के खून से। बाज तुम में ऐसे थे, मैं बताता हूँ वो कौन थे, थोड़ा ऊपर आए, हम यहाँ थे कैसे थे? तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना ये हो। वो कह रहा बाज तुम में ऐसे थे, अब एक एक का नाम बताएगा आपको। ये ऐसे लोग थे, इसलिए खुदा यीशु मसीह को आना पड़ा, इसलिए उसे खून बहाना पड़ा, इसलिए हमने धुलना है। हाँ जी, क्या है? फरेब ना खाओ, ना हराम का फरेब ना खाओ, धोखे में नहीं रहना। मसीह यीशु ने हुआ कि नहीं होना, पैसा पहले वाला पहला हो गया, वो बाप दादी में तो गया था, तो मैं रील नहीं चला रहा। ये कोई ऑर्डिनरी बातें नहीं है। आज दुनिया में इसी पर कलाम किया जा रहा है, गेट रेडी, रिपेंट फॉर जीसस इज कमिंग सून। कैसे लोग थे? ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना हराम कार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, खुदा की बादशाही के लोग वारिस नहीं होंगे। आगे, ना बुत परस्त, ज़नाकार, अब्राहम कहाँ से निकला था? बुत परस्त से निकला जी। आगे, ज़नाकार, ना अयाश, और ना लोंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम, और ना जालिम। ये लोग बात से बात तुम में ऐसे थे, इसलिए उसे आना पड़ा। फिर पढ़ेंगे अपनी ऐप में दोबारा। और बाज तुम में से ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से क्या होंगे? के रूह से धुल गए और पाक हुए, रास्तबाज भी ठहरे। आप इसके बगैर जिंदगी ही नहीं है। चर्च में आना और व्हाट? आपकी मोहब्बत खुदा के लिए क्या है? व्हाट यू आर डूइंग फॉर हिम? जानते हैं आप खुदा को? जानते हैं खुदा यीशु मसीह को? हमने सुना, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। हमने सुना कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बच करती थी, खुदा मौजूद था। कहा नहीं था? खुदा ने ही दुनिया को बनाया, कहा और हो गया। उसने आदम और हवा को भी बनाया था। याद है कहाँ बनाया था? जी, कब बनाया? कब बनाया था? आदम और रोज आता था। कब बनाया था? आगे दिन में जब उन्होंने गुनाह किया, वो छुप गए। तुम बुलाए हुए हो, छुपो ना। गुनाह के पीछे मत छुपो। मैंने उस दिन बनाया था, किसी वजह से गुनाह ना करें, वजह खत्म हो जाएगी, गुनाह रह जाएगा। और जी मजबूरी सी थी, वजह बना दी ना आपने। जैसे हवा ने भी क्या दिया, तो शाम ने क्या मैं खा गया। आदम ने कहा, हवा ले आई थी मेरे को, अब साथी है जिंदगी का, क्या करूं, खाने क्या? ये जरूरी नहीं है। If your partner is not doing right, आपका खामन है या बीवी है, अगर वो खुदा से बाहर है, समझाएं उसे। इससे बेहतर है कि आप
मौका दे, उसे तालीम दे, चर्च में लाए। हैं बहुत सारे कबीले ऐसे हैं, बहुत से खानदान हैं, बट खुदा बहुत ही अजीब हुआ है। उसने एक मकसद के लिए दुनिया बनाई है। अब वो बार बार कहता है आपको तौबा करो, रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही से शुरू हुआ था 2000 साल, उसी में स्टार्टिंग ही याद है, ऐसा ही था। क्या कहा था? तौबा करो, रजू लाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। 2000 साल हो गए मेरी आई नहीं, आसमान की बादशाही आसमान की बादशाही, आसमान न देखो, आसमान की बादशाही मौजूद है। ये कहाँ बैठे हैं आप? उसकी बादशाही में बैठे हैं। ये कहाँ बैठे हैं आप? उसका कलाम लेके बैठे हुए हैं आप। आप तो खुदा की बादशाही में हैं। आप तो बुलाए गए हैं, ब्लेस्ड पीपल। अगर आप कलाम से बाहर हैं तो समझो ऐसे नहीं बुलाए गए। अगर आप कलाम से बाहर हैं तो सोचे अपने आप को कि मैं खुदा की बादशाही में नहीं। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। यहां कौन होता है? हम कहते हैं खुदा की हजूरी मौजूद है, खुदा मौजूद है। पास्टर साहब के लिए नहीं कहते, वो आए या ना आए, हमारा तो होगी, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर कौन मौजूद है? खुदा मौजूद है। खुदा का पाक रूह मौजूद है, जो हमें गाइड करता है, हमें समझाता है, बताता है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड विल बी विद अस। ये कलाम किताब नावल नहीं पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। अबे दादे परदादे जुड़ गए थे, अब और अगली नस्ल भी जुड़ चली है। इट विल हैपन, और बहुत करीब है वक्त। अभी दुनिया बिल्कुल अलर्ट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को सुने, मुल्की सरबराह कह रहे हैं जंगें होने वाली है। भागा फिर रहा है ट्रंप कि जंग ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, जंग होगी। क्योंकि कलाम की पेशिन गोइयां पूरी होंगी, ट्रंप की बातें नहीं पूरी होंगी। किसकी बात? क्या लिखा है? अभी जमाने में क्या होगा? कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत। बहुत कुछ सुनोगे, सुन रहे, लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, ये सब कुछ जीसस इज कमिंग सून। अभी आपने सुना, बाद ऐसे लोग थे, अब भी हैं, नहीं है अब है जी? बाइबल में पढ़ा, कोई गलत लिखा गया, तब से 2000 साल पहले से ये पेशन गोइंग ऐसे लोग होंगे। खुदावन की निस्बत दुनिया को अजीज रखेंगे, ऐशो इशरत नहीं अजीज रखेंगे, रुपया पैसा अजीज रखेंगे, लुट्टो दे फुटो। समझना नहीं? अदालत में नहीं खड़े होना जी, नहीं होना, होना श्योर day is a judgment day. कोई उसे सफाई दीजिए, नो एक्सक्यूज, है कोई एक्सक्यूज? कोई सिफारिश है? कोई वहां पर सिफारिश आप उसने की है, अपना बेटा इसलिए आया आपकी सिफारिश करनी। कौन नहीं सुन रहे दोनों को सुनो, कब सुने? जब यीशु, आज मेरी बात याद रखें, जिस घर में यीशु है, हैप्पी हैप्पी फैमिली व्हेन फादर इन द again listen to me, happy happy family when father in the yeah, happy happy family when mother in the home, right? खुशी होती है,
Happy, happy family with children in the home. Good. Happy, happy family with Jesus in the home. जब उस घर में यीशु है तो सारी खुशी। ये स्कूल में पढ़ाया करते थे। एक गीत आता है उसमें बड़ा फ्रेंड भी है यीशु कैसा दोस्त है, कैसा दोस्त है। दुख और गम उठा दे, उठाया उसने गम, उठाया उसने दुख, मारा गया, जलील हुआ, नोचा गया, थूका गया मुंह पर, और क्या चाहिए था? क्या और करता आपके लिए? ऐसे बहुत सोचते थे मुझे तो ना अक्षर पर बुरा भला किसी को बोलो अभी तो देखो बाहर नहीं निकल गए, नोचा दिया, जुल्म, कोड़े। आपको पता है वो कर्म कैसा कोड़ा था? जब लगता था तो सांस ही वेरी पेनफुल। फिर भी सोच लिया जाता हूँ की करे तो दसो में और दसो की करे तो हो। फिर उसने कहा था मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, मैं तुम्हें याद करा रहा हूं, मैं जाता हूं। शिकिर घबरा रहे रखने के नीचे उनकी पड़ेगा, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा हमारी मान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं क्या कर रहा हूं? जाता हूं। अगोर मेंशन वो घर, वो शहर, नया यरूशलेम इस प्रिपेयरिंग बन गया होगा। बहुत सा होगा ऐसा इन्हें प्रोजेक्ट टाइम नहीं लगता। दुनिया मैंने पहले आपको कहा था, उसने कहा था पत्थर पर पत्थर बाकी, यहाँ पत्थर पर पत्थर बाकी 2 किलोमीटर के बाद होते चलेगा। बाबल में क्या हुआ था याद है आपको? क्या हुआ था जी? खुदा से जाके पक्के चलिए और फिर ना को पानी आ जाए, फिर पानी आ गया तो फिर चढ़ जाएंगे, खुरी से चढ़ जाओगे। Never feel like that. खुरी बन गया, पहुंच गया आसमान तक। आज भी इंसान बहुत पहुंच गया, चांद सियारों तक जा रहा है। लेकिन याद रखें, इंसान जितना भी बड़ा रॉकेट बना ले, मशीन बना ले, he cannot enter the kingdom of heaven. आमीन। आसमान से खुदा तक नहीं जा सकता, सियारे लेकिन सियारे खुदा में जा। आमीन। वो लोग जो धुल चुके हैं, वो लोग जो बुलाए गए हैं, they will reach the kingdom of heaven. ऐसे उनके लिए जाता। एलिया कैसे गया था जी? ऊपर से आई और इसे देख। खुदा यीशु मसीह कैसे गया? रॉकेट आया, जहाज आया, हनूक कैसे गया? खा लिया गया। मूसा को भी खुदा ने बाद में पहले उसको वो सजा दी। ये खुदा का बड़ा भेद था। अगर मूसा की कब्र कौम बनी इस्राएल को पता होती तो आज वहां मैंने क्या से क्या बना होता। खुदा जानता था ये कौम ये पागल हो जाएंगे, उसने उनको बताया, ये दिखाए। आज मूसा मानता है आप और मैं भी जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। टेक द वर्ड ऑफ गॉड, ये कलाम है। डट्टों पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाता और ना मैं शाम को बैठ के मैसेज में जाता हूँ। मेरा डेली है स्टडी और मेरे नोट्स लिखे होते हैं, फिर मैं देखता हूँ फ्राइडे में कौन सा मैसेज देन आई सेलेक्ट गो इनटू द बाइबल डीपली। तो वहां भी जाए। दानियल को शेरों की मार से किसने बचाया? खुदा ने बचाया, सब जानते हैं। लेकिन he was praying 3 times a day every person. खुदा मोहब्बत है,
खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है, हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, जिसका उसने पैगाम दिया, तौबा करो और रजू हो, क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। Do it. क्यों नहीं करना चाहते? तो खुदा का है, खुदा को दो, वक्त खुदा को दो, हदिया खुदा को दो। वक्त बहुत जरूरी है। एवरी काम करें, मैं कम फुल जॉब, ये नहीं है कि आपने ड्यूटी नहीं करनी, 10 आवर है, 10 आवर तो है, 12 घंटे करूंगा। खुदा ने ये मुहैया किया है जॉब आपके लिए, अच्छी जॉब खुदा मुहैया करता है ताकि आप खुशहाल रहें। लेकिन डोंट फॉरगेट इट, ये सब कुछ उसने दिया है, मनी बॉक्स नहीं है। क्या मैंने बताया था? ब्लेसिंग बॉक्स, ब्लेसिंग बॉक्स। वो आपको एक ब्लेसिंग नहीं देगा, बिग बॉक्स फुल ऑफ ब्लेसिंग, He will pour upon you each day. सुबह उठे हैं आप, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आंखें खुली आपकी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सांस ले रहे हैं अभी तक, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सुन रहे हैं, खुदा के घर में हैं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। और की चाहिए? बहुत से लोग आज सुबह नहीं उठे, बहुत से लोग आज सुबह हादसे का शिकार हो गए, मौत का लुप्त हो चुके हैं। आप तो ब्लेस्ड लोग, दैट्स व्हाई यू आर हियर। घर से आए हैं, गाड़ियां लेके आती हैं, लेके जाती भी है, इट्स अ ब्लेसिंग। प्लीज वो याद रखें, एक बात को याद रखें, मैं किस लिए बुलाया गया हूँ, ये टॉपिक है। मैं किस लिए बुलाया गया? आस्क योरसेल्फ, मैं किस लिए चर्च में बुलाया गया हूँ? मेरी मारियता में? नो, डोंट थिंक लाइक दैट। ना, बस 2 महीने बाद भी आएगी, नो प्रॉब्लम, आई विल कम टू चर्च। सुस्ती छोड़े, जॉब है, खुदा ने ब्लेस किया है, बट थैंक गॉड। अगर छुट्टी है तो आ जाए, ड्यूटी है तो सोते करना। खुदा हीले बहाने नहीं सुनेगा। मैंने पहले कहा, नो एक्सक्यूज, ना किसी दी दुआई, ना किसी दी सिफारिश, there is no way। है तो ये कलाम है, क्या है इसको जाने, और ये आप पूछ रहे हैं, यही आप पूछ जाएगा। आखिरी हमारा पढ़ेंगे मकाशफा की किताब, और ये इसलिए है, वो कहता है कि ये सब कुछ यीशु के ज़हूर के लिए और उसकी मुंतजर होने के लिए है, टू सी जीसस, और उसकी आमद की इंतजार करने के। हाँ जी, प्रकाशवा पहला बात 7 है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा। देखो वो कैसे गया था आसमान पर, बादलों पर, राइट। फिर कहता है कि देखो वो बादलों के पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा था, वो 2-4 साल पहले जिन्होंने उसे मजलूब किया, कोड़े मारे, थूका, जुल्म किया उस पर, वो भी देखेंगे। Jesus is coming back. क्या हो गया? पूरे सलीब बच कब्र में भी डाल दिया। Same Jesus is coming back, and this is the rapture. देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हाँ जी, जरा खड़े होके पढ़े, बहुत साफ जोर से ऑडियंस की तरफ मुंह करें। हम काशवा पहला बाप उसकी 7 आयत में जी, जी। पढ़ेंगे। जी। देखो वो बादलों के देखो साथ, वो बादलों के साथ आने वाला है। मर्सिडीज से नहीं होगा, रॉकेट किसी से नहीं होगा, जहाज में नहीं आएगा, सुपरसोनिक एयरलाइन में आएगी, नवीन वो एयरलाइन से आएगा। लिखा हुआ है कि किस पर आएगा? बादल पर आने वाला है। नेक्स्ट, और हर एक आंख उसे देखेगी। और हर एक आंख उसे देखेगी।
और जितनों ने उसे छेदा था और जिन्होंने उसे छेदा भी था वो भी देखेंगे। उसी भी हो, वो भी हो। खुदा ने, हम अगर उसी खुदा में सो भी गए जाएंगे, ठीक, we will stand up and we will see Jesus. क्या हमेशा की जिंदगी के लिए या हमेशा की हलाकत के लिए, दो चीजें। ये आप पर भरोसा है। तशरीफ रखें, थैंक यू वेरी मच। या हमेशा की जिंदगी के लिए या हमेशा की, तो नो अदर वे, टू वेज होम, बाइबल राह हक और जिंदगी नहीं मनना में फिर जाओ, अगले में जाओ, अला तूल अनार जहन्नम, प्लीज अपनी जिंदगी लाइफ में लाएंगे पलूस को देखो, पलूस बन गया, सौल से पलूस बन गया, याकूब से इस्राइल बन गया, इब्राहिम ईमानदारों का बाप, कौमों का बाप, आप पूरी सल्तनत उसकी है। आपके लिए भी रखा हुआ पुकार, ऐसा अपने कंधों पर खड़े हो जाएंगे दुआई अंदाज में, और दुआ भी करें इसके साथ, अपने आप को दम की आमद के लिए तैयार करें। शुक्र कर, he is here to help बीमारियां, अगर ये इलाज परेशानी में ये सुना We thank you, Lord, in the name of Jesus. आमीन, यीशु के नाम से। खुदा एक कलूस रब्बुल फाइल bless each one, touch them, किसी कमजोरी में है, बीमारी में है, इसे वक्त तेरे यीशु नाम में डांट देते हैं। Thank you in the name of Jesus. आमीन।